checking if the audio is clear, if audio video is clear. Sound is okay. Video is not lagging. Yes. As we wait, maybe what you can do is related to yesterday. If you have any questions, please you can type those questions, or you can. So there is no audio. Is my voice not audible? Voice is audible or not audible? Okay. Audible, sir, audible. Maybe let's start with the prayer. We'll do a short Om meditation just to have better connection. And then we'll begin the session. Please close your eyes, inhale and exhale slowly. Be aware of your whole body. Be aware of your breath. Be aware of your each and every inhalation and exhalation. And let's chant the mantra Om 7 times together. Om. Om. After each Om, try to feel the silence within you, the stillness within you. Om. 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 Om.
be aware for the next 30 seconds to 1 minute. Slowly, gently open your eyes with a big smile. So anyone has any question from yesterday's discussion? No questions? Okay, we'll go straight to the next part. Can you see the presentation? Okay, great. So again, we will reflect on further some key factors which will build the base for our future discussions when we will go into in-depth study about death and afterlife, because these pointers are extremely important in terms of the importance of this study and how this study can transform your life. So are you ready? Shall we begin? So yesterday we talked about Akasha, right? We talked about the space around us, which is actually not empty space, but actually a fertile soil in the terms of a layman language, that which can transform every thought into reality, or which can create every thought into reality which we think, if we repeatedly keep that thought in mind for a sufficiently long period of time. So every thought we have, every word we say, every action we do has a consequence. It creates something for us, and also it affects other people, not only us,
but it affects other people. And according to that, our destiny is formed in the future, whether in this life, for this life, even our destiny, life after death, and our destiny for next lifetime, till that thought which you created has its effect. मतलब वो जो विचार आपने तैयार किया, जो भी इमोशन या जो भी एक्शन आपने लिया, उसका रेजोनेंस, जैसे कि रिपल इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा. Can some of you keep the video on? It's very, I mean, strange to talk to blank screens. I mean, just looking at myself and just looking at the screen, it looks strange. Thank you. So what I was saying is, आपने कभी बचपन में लाइक वो खेला होगा, लाइक पत्थर उठा के यू थ्रो एट द रिवर एंड उसके रिपल्स क्रिएट होते हैं. डू यू रिमेम्बर? उसके ऐसे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं पानी में जो बहुत दूर तक जाते हैं. हु रिमेम्बर्स दैट? मोस्ट ऑफ यू, राइट? यस. सो सिमिलरली हमारा हर एक वर्ड, हमारा हर एक एक्शन इनर वर्ल्ड में और फिजिकल वर्ल्ड में कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, कुछ रिपल्स क्रिएट करते हैं, और जब तक वो रिपल्स या वो वाइब्रेशंस इफेक्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं, जितने लंबे समय तक उसका इफेक्ट, वो चीजें हमें भी अफेक्ट करती है. सो दैट इज व्हाट karma is about. What goes around comes around, and then it also has a रिवर्स इफेक्ट. जैसे कि आपने कहीं पहाड़ियों में जब गए होंगे, when you say something in loud words, or when you shout, you can hear echo of your voice, right? So karma is like an echo of I mean, karma means life is like a mirror. जो आप करते हैं वो आपको टाइम टू टाइम दिखाता है the effect of what you are doing. Now ये इफेक्ट जो है ये कंटिन्यू होता है not only in the physical world, it continues even after you die. And actually जब आप इनर वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में जाते हैं, आपके एक्शंस का इफेक्ट ज्यादा क्लियरली समझ में आता है, बिकॉज इन द इनर वर्ल्ड थिंग्स आर मच मोर कॉन्क्रीट. आई मीन, उसका आप कॉन्क्रीट फॉर्म देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, just to understand what it means. Are you interested in stories? So there was this lady, according to a research, according to a study done on people who die. So she was I mean, her character was like कि वो लोगों को यूज करती थी, आई मीन पुरुषों को यूज करती थी फॉर हर ओन पर्सनल बेनिफिट्स. एंड उनको प्यार का झांसा देख के शी यूज टू टेक मनी और जो भी उसको उसकी ज़रूरतें थी. एंड ऐसा कर करके शी हैड मल्टीपल रिलेशनशिप. उसमें से कुछ लोगों को जिनको उसने प्यार का झांसा दिया, दे गॉट वेरी सीरियसली इन्वॉल्व विथ हर. एंड जब उनको धोखा मिला, दे गॉट so depressed that they committed suicide. And then हर जिसके साथ भी उसका रिश्ता टूटता था, they all would experience tremendous agony, tremendous pain, and tremendous anger towards her. अब फिजिकल वर्ल्ड में तो जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई हमारे लिए गुस्सा महसूस कर रहा है या किसी के अंदर हमारे लिए बदले की जो भावना है, उसका शायद अगर आप सेंसिटिव हो तो एनर्जी फील हो सकता है. बट in the inner world, it becomes a real entity. It becomes like a 3D. It takes a form. So what happens was, जब वो लेडी की मृत्यु हुई, after when her time came, she was taken to hell. वो नरक में लेके जाया गया उसको, उस जगह पे जहाँ पे उसके पापों का प्रायश्चित होगा. और जब उसके पापों के प्रायश्चित के रूप में उसके सामने में एक बहुत ही भयानक सा एनिमल रूप आया, जैसे कि सोचिए कोई बड़ा सा जानवर हो, डरावना काले कलर का, जो उसकी तरफ उसको अटैक करने आ रहा था.
एंड उसकी लाल आंखें थी एंड देन सो अकॉर्डिंग टू द क्लेयरवॉयंट इन्वेस्टिगेटर जिसने ये विजुअलाइजेशन देखा या ये सीन देखा, तो उसको समझ में आया कि ये जो बीइंग फॉर्म हुआ था, जो लाइक जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हॉरर शोज में, जो उसके पीछे भाग रहा था, वो कोई और नहीं, उन सभी लोगों की एक कॉमन घृणा थी या गुस्सा था, जिन लोगों को उसने धोखा दिया, जो एक बीइंग के रूप में फॉर्म हुआ। और वो उसका पीछा कर रहा था क्योंकि उसने अपने पापों का या अपने सिंस को एक्सेप्ट नहीं किया या उसको प्यूरिफाई नहीं किया, उसको नलिफाई नहीं किया बिफोर शी डाइड। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लेयरवॉइंट ऑब्जर्वे, जो ऑब्जर्व किया जिन्होंने, दिस लेडी कंटिन्यू टू रन अवे, मतलब वो भागती रही और वो उसका पीछा करते रहा टाइम टू टाइम इन द इनर वर्ल्ड। सो उसके लिए उसका जो हेल्थ था या नर्क था, इट वॉज वेरी, इट वॉज समथिंग लाइक दिस, डिस्क्राइब समथिंग लाइक दिस। और वो एक डार्क प्लेस में थी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो एनीवे माई पॉइंट इज, हम जो चीज, पार्ट ऑफ दिस स्टडी ग्रुप is also to remind ourselves of the responsibility we have of everything we think, feel and do। हम जो करते हैं वो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। मरने के बाद कोई भी व्यक्ति सडनली एक भगवान या एक अवतार या देव नहीं बनता है। वी स्टिल आर द सेम ह्यूमन बींग्स। ओके, एंड वी हैव टू आंसर एवरीथिंग वी हैव डन, चाहे वो किसी ने देखा हो या ना देखा हो। हमने कोई भी चीज कितनी भी छुपके की हो, आई टोल्ड यू दैट हम एक ऐसे कंप्यूटर के अंदर है या ऐसे मैट्रिक्स के अंदर में है जहां हमारी हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। सो इफ यू वांट कि आपका जो लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो एक अच्छा लाइफ हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्रिएट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा अभी है। हमें अभी उसे क्रिएट करना है जब तक हम इस वर्ल्ड में है। ओके, सो दैट इज अबाउट द स्पेस और आकाश। इसलिए इसे आकाशिक रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ये आकाशिक रिकॉर्ड, आकाश मतलब इट इज नॉट द स्काई, आकाश इज नॉट द स्काई, इट इज एन एलिमेंट। आपने 5 एलिमेंट के बारे में सुना है, 5 तत्वों के बारे में, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। सो आकाश इज नॉट स्काई। आकाशा इज एलिमेंट जो हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, उसी से हम ये चारों एलिमेंट्स आए हैं। और इट इज लाइक अ कंप्यूटर और अ रिकॉर्डर, जो आपके हर एक गतिविधि को, हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर फॉर्म होता है। सो बीइंग स्पिरिचुअली अवेकन मतलब इसकी पहली स्टेप ये है कि ये जानना कि ऐसा है, और स्पिरिचुअल लॉज जो है उसके अनुसार या उसके अनुरूप हमने अपने जीवन को धीरे धीरे करके सुधारना है टू द लेवल जहां हम यूनिवर्सल या गॉड मेड लॉस के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि यही हमारी आने वाले जीवन को में बदलाव लाएगा। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाला जीवन, इट डज नॉट ओनली इंक्लूड द रेस्ट ऑफ योर फिजिकल लाइफ, बट योर इनर लाइफ या लाइफ आफ्टर डेथ। क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ इज मच लॉन्गर एज कंपेयर टू the human life, according to theosophical teachings, and this based on what they have observed. One soul spends about 1200 years to 2000 years in the inner worlds, or in the inner space, you can say inner cities or inner realities. जब ये स्टडी पूरी होगी तो आपको समझ में आएगा दैट लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगले फिजिकल जन्म में या फिजिकल इनकारनेशन में आने के बीच में, इसमें और उसमें, कम से कम 1200 से 2000 साल आप इनर वर्ल्ड में रहने वाले हैं, जहां जीवन आपका कंटिन्यू होने वाला है। और वो उसकी जो तैयारी है या उसका जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, वो निर्भर करेगी अर्थ पे आपने कैसा जीवन जिया। सो अर्थ लाइफ इज एक्चुअली अ प्रिपरेटरी लाइफ
आपका जो फिजिकल जन्म होता है ये 50-70 ईयर्स और 100 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले 1000 से 1200 लाइफ, सॉरी 1000 से 1200 सालों के जीवन को आप कैसे जिएंगे, उसकी आप यहाँ तैयारी करते हैं. सो यू कैन से दिस इज लाइक ट्रांजिशन, या दिस इज लाइक ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड. और ये ट्रेनिंग पीरियड का जो रिवॉर्ड है आपको डेथ के बाद में मिलता है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. Lack of knowledge does far more damage to our lives and wastes so much time that we cannot even comprehend. ये हमने कल वैसे पढ़ा था. There is a vision of God for us to live in God's glory. This vision is called the divine plan. Now let's talk about this. This is a very, very important topic. इसको मैं अभी के लिए just close करता हूँ temporarily. What is this divine plan? आप जब घर बनाते हैं, do you go to a architect first? या आप जस्ट वो खुदाई का सामान लेके शुरू कर देते हैं खोदना जमीन? व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज द प्रोसेस वर्क? जब आपको घर बनाना होता है, सबसे पहले आप तय करते हैं कि घर कहाँ बनाना है, राइट? फिर वो जगह खरीदते हैं. देन उसके बाद में आप आर्किटेक्ट और प्लानर की मदद लेते हैं. आपके सपनों का घर कैसा होगा उसके आप उसको इनपुट्स देते हैं. वो इनपुट्स के हिसाब से एक डिजाइन बनाता है या ब्लूप्रिंट बनाता है, और फिर उस ब्लूप्रिंट को लेके जो कॉन्ट्रैक्टर है या बिल्डर है वो आपका घर बनाता है. इज इट करेक्ट और नॉट? यस. सो ऑन अ सिमिलर लेवल देयर इज अ कॉस्मिक बिल्डर. गॉड इज अ कॉस्मिक बिल्डर जिन्होंने अपने अर्थ के लिए एक बहुत ही सुंदर प्लान तैयार किया है. हम जो सोल्स है, उनके जो चिल्ड्रन है, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, राइट? तो हमारे इस पृथ्वी पे बसने के लिए, या हम जितने भी हजारों साल यहाँ रहेंगे, उसके लिए उनके बेहतर जीवन की एक कल्पना ईश्वर कर चुके हैं. ये कल्पना जो है, इसे हम स्वर्ग भी कह सकते हैं, या जैसा बोलते हैं ना, स्वर्ग जैसा जीवन. सो ये कल्पना ईश्वर ने करके एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, एक बेहतर जीवन का, बेहतर लाइफ का, जिस जो कि इस आकाशा में या इस स्पेस में जो हमारे चारों ओर है ऑलरेडी प्रिंट किया जा चुका है. नाउ जब हर हर बार जब आपकी मृत्यु होती है या शरीर की मृत्यु होती है, आप इस प्लान को या इस मॉडल को जीते हैं, कुछ समय तक उसको अनुभव भी करते हैं, और आप बोलते हैं कि हाँ ये स्वर्ग था. कई सारे जो कवि, कई सारे संत, कई सारे पेंटर, आर्टिस्ट, वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. कई बार उनकी कॉन्शियसनेस उस डिजाइन को देख पाती है, और उसे जब वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो शब्द कम पड़ते हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड जो ईश्वर ने हमारे लिए तय किया है या बनाया है. ओके, यहां तक सबको समझ में आया? सो ये जो डिवाइन प्लान है, ये क्या है? दिस डिवाइन प्लान इज अ प्लान ऑफ फ्यूचर आर्किटेक्चर फॉर ह्यूमैनिटी. फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होना चाहिए. नाउ दिस फ्यूचर इज वेरी रिलेटिव, क्योंकि उसके बिल्डर हम हैं, या उसके एक तरीके से God is like an architect, we are like the builders. क्या सुना आपने? God is like the architect, we are like the builders. जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है चीजों को बनाने का, वो हमारे पास में है, वो पावर हमारे पास है. गॉड इज लाइक द आर्किटेक्ट. सो गॉड ने वो प्लान तैयार कर दिया है, लेकिन उसमें से, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे एक घर 3 साल में चाहिए बना के,
तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले डिसाइड, ओके, फाउंडेशन बनेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा। कई बार ऐसा होगा कि ग्राउंड फ्लोर बन के उसमें पहले इंटीरियर करवा लेंगे, एक पूरा फ्लोर रेडी करेंगे, फिर दूसरा बनाएंगे। कई लोग जो है पहले ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, फिर तीसरा चौथा पांचवा फ्लोर कच्चा बना लेंगे, देन उसके बाद में दे विल स्टार्ट टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट by putting walls, then all the decorations and so on. So सबका ये करने का तरीका अलग है, right or wrong? So similarly, God ने एक प्लान तैयार किया है, एंड वो चाहते हैं कि हम अपने आप को एलिवेट करें उस पॉइंट पे जहां पे वो प्लान एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं हायर वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। बिकॉज ये एक डिवाइन प्लान है, ईश्वर का बनाया प्लान है। उसकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ऐसी जगह रखा गया है जहां पे वो नष्ट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, वो प्रिजर्व होके रहे। नाउ इसको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, बट समझने की कोशिश करिए। मेरे साथ इस तरह से 3 फिंगर्स रखिए, बोलिए आपने गायत्री मंत्र सुना होगा ना, भूर भुव स्वाहा। सो फिजिकल वर्ल्ड, या जिसको आप बोलते हैं भूलोक। भुआ लोक मीन्स जहाँ पे आपके इमोशंस होते हैं, इसे इमोशनल प्लेन भी कहते हैं। देन स्वा मीन्स आप द मेंटल प्लेन, यानी ये है वर्ल्ड ऑफ थॉट्स है, जहाँ पे हमारे विचार होते हैं। लेकिन इसके थोड़ा ऊपर एक चौथा प्लेन होता है जिसमें डिवाइन डिजाइन होता है। इस प्लेन को कारण का इसको बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ कॉजेस, या हिंदी में I don't know about the world, but the body is called the कारण शरीर। हायर मेंटल इंग्लिश में, या जो जिन लोगों को ये चीज समझती है थियोसॉफी की, सो दे कॉल इट द हायर मेंटल प्लेन। सो ये जो हायर मेंटल प्लेन है या प्लेन ऑफ कॉजेस है, यहाँ पे चीजें प्रिजर्व्ड होके रहती है। नाउ अगेन ये 3 फिंगर को टच करिए, बोलिए फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। ये तीनों लोकों में या इन तीनों वर्ल्ड्स में चीजें कभी भी स्टेबल या एक जैसी नहीं रहती है। दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बोलिए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हर दिन बदलते रहती है। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंजेस। यहाँ निरंतर कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। इसलिए ईश्वर जो है अपना प्लान इन तीनों वर्ल्ड में कहीं भी रख नहीं सकते। बट इस इन तीनों के ऊपर जो चौथा प्लेन है, विच इज द प्लेन ऑफ कॉजेस, दिस इज अ प्लेन ऑफ विच इज अनचेंजिंग। यहाँ पे चीजें बदलती नहीं है। सो इन दिस प्लेन एग्जिस्ट अ प्लान फॉर ह्यूमैनिटी। ये जो प्लान है इसे हम बोलते हैं डिवाइन प्लान। ये जो डिवाइन प्लान है, मैंने जैसे बताया है, ये हमारे ट्रू फ्यूचर लाइफ की उसमें सारी जानकारी है कि कैसा जीवन हम जी सकते हैं, हमारा बेस्ट लाइफ कैसा होना चाहिए। सोचिए कि आप आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचिए। आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज नाउ। आंखें बंद करिए। अब सोचिए कि दुनिया में अगर सोचिए हर एक चीज पॉसिबल हो। अगर सोचिए आपके पास शक्ति आ जाए कि आपने कुछ बोला और वो रियलिटी बन गई, तो कैसा वर्ल्ड आप देखना चाहेंगे? एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड की कल्पना करिए। सो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स इन योर ब्यूटीफुल वर्ल्ड? नो डिसीज, बीमारियां नहीं होनी चाहिए, यू नो, लोगों के बीच में सेपरेशन नहीं होना चाहिए, एक यूनिटी होना चाहिए। देयर शुड बी नो बॉर्डर्स बिटवीन द कंट्रीज। एक वर्ल्ड होना चाहिए, वन वर्ल्ड होना चाहिए, वन रिलीजन होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। व्हाट एल्स? घर सबके ब्यूटीफुल होने चाहिए, बिकॉज यू हैव द पावर टू क्रिएट।
तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बाहरी रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है. जस्ट बाय सेइंग इट यू कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ. सो इमेजिन, कंटिन्यू टू इमेजिन कि ब्यूटीफुल वर्ल्ड की आपकी कल्पना कैसी है. ट्राई टू लुक एट इट. सोचिए सब संभव है. सो आपके मन में क्या आता है? आई वॉन्ट अ फ्यू आंसर्स. Once you see something, I want you to type it, या I will unmute you. आप उसको वर्बली भी शेयर कर सकते हैं. कैसा वर्ल्ड आप देखना चाहेंगे? You want to share something, Pranati ji? Okay, I will unmute you. Yeah, since there is no negativity in this world, which is full of love, abundance, and there is no violence, there is no pressure for anybody to, earn for living, because they're raising their own crops, having pure food. I think people have lot of creativity here. People really want to do what they are. They know their inner self. They are getting access to their inner being, and they are becoming excellent in whatever they are doing. This is what I am seeing. Wonderful, wonderful. Let's take a few more opinions. Yes, Indumati ji. I visualize mother respected by everybody. Good air, good water, good soil that we bless every day. It becomes a reality, and everywhere we see nature in its full beauty. Okay. Everybody is responsible for what they are doing. Sustainability. Good, good. Wonderful. Thank you. Yes, Catherine or anybody else want to share their vision, what they saw? See, this is an important exercise. Yeah, Catherine, yes. Good evening, sir. Divine love. Divine love. Okay. What else? Dignity in everyone. Dignity in everyone. Okay. Dignity. Yeah, dignity. Okay. Good. Yes, Kamlesh ji. मैंने किसी इंसान को तो देखा ही नहीं. मैंने देखा सुंदर से मंदिर, जैसे गोल्डन और सिल्वर कलर के, जैसे पिरामिड टॉप्स होते हैं मंदिर के ऊपर, वैसे. और जैसे हम बच्चे से तो पेंटिंग बनाते थे ना, ऐसे वाइट सी रिवर जा रही है, माउंटेन्स है, सनसेट है, ऐसा मुझे लगा. एंड देन swans and birds in the river. मैंने किसी को देखा ही नहीं. No pollution, nothing. Nature. Wonderful. Very beautiful. Thank you. Anybody else? I want some answers, because ये exercise जो है is really, really important. I will tell you why. Anybody like to share their experience, what they saw? Imagine that everything is possible just by the spoken words. You can create something. What do you want to create in this world? Yes, Deepti. Can you unmute, please? आपका आवाज नहीं आ रहा. Can you unmute? Sure. Atma Namaste to everyone. I actually want कि जब भी लोग they should be strong believer in karma. So because what actually happens, people talk something, people behave something. So I am a person who believes totally on karma. So I want कि जो भी world बने वो proper karma को consider करते हुए बने, जिसमें लोग अपने words और actions में एक balance बना के चलें. Wonderful, beautiful. Thank you. Thank you, sir. Yes. Anybody else? Okay. Okay, now let's try to understand the purpose of this exercise. What if I tell you that everything which you see is possible and is real? Everything which the mind can comprehend
when we say, let's picture a world which you can call as heaven. एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में सोचिए जिसको आप हेवन बुला सकते हैं, और वो वर्ल्ड ट्रूली एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट इज देयर. लिसन केयरफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपका माइंड कुछ चीज सोच पा रहा है तो वो एग्जिस्ट करती है. अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका माइंड कभी नहीं सोच पाता. इस 2 लाइन के स्टेटमेंट को बार बार सोचिए. It will blow your mind. Everything which your mind can think, comprehend, exist, and can become a reality in the future. That which does not exist, your mind cannot think. So, heaven की जितनी भी ज्यादा ब्यूटीफुल कल्पना या परिकल्पना आप कर सकते हैं वो एग्जिस्ट करती है. मतलब दैट डिजाइन इज ऑलरेडी देयर. योर माइंड इज सिंपली कलेक्टिंग सिग्नल्स, क्योंकि आपने अपने आप को उस पर ट्यून इन किया, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया. अब आप मुझे बताइए, पूरे दिन में ये परिकल्पना आप कितने बार करते हैं, और कितने बार आप उन चीजों पे मेडिटेट करते हैं या सोचते हैं जो चीजें आप नहीं चाहते हैं? Almost the whole day. Do you want crime? Do you want terrorism? Do you want rape in this world? Do you want injustice in this world? Do you want drugs in this world? Do you want relationship problems and disease in this world? Then why do you study about it? Then why do you try to meditate or see or access that information through different sources? My point here is, the most fertile place and the most important place in this world is the human mind. It can create anything it decides. Human mind is the true builder. जो आप और मैं जो हैं, I told you yesterday about Freemasonry. Freemasonry is a school जहाँ पे लोगों को consciously train करते हैं to make their minds only used for conscious, positive creation of something which is beautiful and glorious. ये 2 वर्ड्स याद रखिए, ये आपके बेसिस होने चाहिए जब आप कोई भी चीज सोचते हैं या बोलते हैं. It should be beautiful, it should be glorious. Are we communicating? Yes. Why are we talking about this? Because God ने already एक प्लान दिया हुआ है जो एग्जिट करता है, जिसका आपने मे बी 0.1% ग्लिम्स लिया जब मैंने आपको बोला सोचिए सब पॉसिबल है. एंड आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से दैट इवन दिस इज पॉसिबल, दैट वन डे ये पावर आपकी मैनिफेस्ट होगी, जहां आप जो बोलेंगे यू विल क्रिएट जस्ट बाय सेइंग. इट इज नॉट अ लाई. आपने सेंट्स के बारे में सुना है जो हवा में से दे कैन क्रिएट एनीथिंग. हैव यू हर्ड ऑफ साई बाबा of South India? He has that power. Some people think of him as a fake person, but actually he was a great yogi. He was a very, very advanced saint. उन्होंने वो power through his siddhis materialize कर ली थी कि whatever he will think, he will create just by thinking. Can you imagine that? तो ये पावर हम सब में है. वी हैव इट. बट द प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम जिस पे हम लोग अभी बात करेंगे नेक्स्ट इज दैट वी डोंट बिलीव इट.
हम फेथ करते हैं उन चीजों पे जो हमें नहीं चाहिए, हम उन चीजों पे फेथ नहीं करते जो आंखों से नहीं दिखती है. See, the beauty of this world is we all have the power to create something out of nothing. But we should learn to see through nothing. It means हमने एक आइडियल पे सोचते ही नहीं है कि हमें कैसा लाइफ चाहिए, कैसा वर्ल्ड चाहिए. हमें चाहिए तो हेवन, बट वी मेडिटेट ऑन द हिल. Are we communicating? It's a very deep reflection if you think about it. God created a beautiful world for us which we have not manifested. Because God का काम हमारे लिए एक रिसोर्स क्रिएट करके देना था, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करके देना था, बट अब वो क्या है, अपन लाइक स्पून फीडिंग नहीं कर सकते ना. गॉड कैन नॉट स्पून फीड यू. कुछ चीजें हैं जो हमें खुद क्रिएट करनी है. Thereby we train ourselves to become future builders of the universe. आज आपकी छोटी सी जीवन को अगर आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं, you can make it glorious. Sooner you will be given greater responsibility to create a beautiful world. Maybe you will be in charge of a whole nation or a whole planet and so on. But उसकी जो एग्जाम है, छोटी छोटी एग्जाम्स, वो आपको अभी पास करनी है by creating something on a smaller scale. जैसे जब आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं या किसी भी स्कूल में, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? स्कूल में पेपर मॉडल्स बनाते हैं. यू मेक मॉडल्स विथ क्ले. यू रिमेम्बर? डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले जो एक नकली डमी बॉडी रहती है, डमी बॉडी पे सब एक्सपेरिमेंट्स करता है कि नहीं करता है? सो दैट इज प्रैक्टिस, दैट इज ट्रेनिंग. सो अर्थ में जो हम जीवन जी रहे हैं, दिस इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड. वी आर हियर टू बिकम क्रिएटर्स, फ्यूचर क्रिएटर्स. बट वो करने के पहले हमें ये सारा जो नॉलेज है या आइडिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो तो होना जरूरी है कि हम क्रिएटर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली वी आर अनकॉन्शियस क्रिएटर्स, और हम वो क्रिएट कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए. We don't want disease, but we are creating disease by everything we do. Do you know that? We don't want relationship problem, but we are creating things which lead to relationship problems. We don't want financial problem, but some of our actions are causing financial problems. हमको भी और दूसरों को भी. So just imagine the main sickness of humanity is ignorance. The main sickness of humanity is nothing else but ignorance. We don't want to know about these things. हम बोलते हैं spirituality 50-60 साल के बाद सोचेंगे, जब कब्र पे लटके रहेंगे तब सोचेंगे. तब आपके पास ना पावर होगी ना कोई रिसोर्स होगा. You will be exhausted of all resources. तब आप जान के भी क्या कर लेंगे? So the real time is when you are young. That is the time when we should train ourselves about inner world spirituality, spiritual teachings. So ये 3-4 points आप याद रखिए. We are co-creators of this universe, and Earth is like a school जहाँ पे they doing autopsy की practice कर रहे हैं या building बनाने की practice कर रहे हैं. In layman's language, by creating a beautiful world, you will be given more opportunities and more power if you can successfully create a small beautiful world by showing your love, your gratitude, your appreciation, and of everything that is around. If we say that God is very merciful and loving, where is that love? Because you see so much injustice in the world. God is like this. He is willing to give you the love, but we are not ready to receive it. Because हमारी ट्रेनिंग जो है उसके सोर्सेस गलत है. That is why we need spiritual teachers, we need avatars, we need saints who are the representative of God, who guide us through the right teachings. Are we communicating? Are you getting that
we are creating a basis of this study, which is like a study of eternity and eternal life. मैंने आपको पूछा कि what is your vision of a heaven world? Only 5-6 people were able to say it. So imagine करिए कि हमारा mind कितना lost and unorganized है, या कहाँ है, we are somewhere, कहीं तो भी we are confused and lost. So spiritual teachings, what is the term? Spiritual teachings tend to bring us to the center. It brings us to the purpose of why we are sent in this world of rebirths. It's like you are in the same elementary school every lifetime. Why do you not want to go to high school? Why do you not want to go to graduation or post graduation? अर्थली लाइफ में आप तभी तक स्टक रहेंगे जब तक कि ये बेसिक लेसन्स हम लाइफ के याद नहीं रखेंगे. Are we communicating? Yes, no? Okay, आगे बढ़ते हैं. So I will repeat, there is a divine plan. This divine plan is nothing but a vision of God for our world. और ये विजन तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने आप को सफिशिएंटली क्वालिफाई करेंगे, ट्रेन करेंगे इन सर्टन स्किल्स, स्पिरिचुअल स्किल्स. ये स्पिरिचुअल स्किल्स क्या है? जैसे कि आप फिजिकल घर बनाते हैं, यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक योर होम इन द इनर वर्ल्ड. यू नीड टू लर्न हाउ टू ब्यूटिफाई दिस वर्ल्ड. यानी बेसिकली इफ यू आस्क मी, 5 पैरामीटर्स है जिससे आपको इस वर्ल्ड को ब्यूटिफाई करना है या इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है. यू वांट टू नो द 5 पैरामीटर्स? पुट योर फिंगर्स लाइक दिस. ये 5 पैरामीटर्स से we have to create this world into a heaven. So that is, there is beauty, then there is goodness, then there is righteousness, then there is joy, then there is freedom. Beauty, goodness, righteousness, joy, freedom. इन 5 मटीरियल्स को लेके या इन 5 प्रिंसिपल्स को लेके यू हैव टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ अराउंड यू टू पास द फर्स्ट टेस्ट, टू ग्रेजुएट फ्रॉम वेयर यू आर इन लाइफ. जब आप उसे इंडिविजुअल लेवल पे मैनिफेस्ट कर पाएंगे, then you will be given the responsibility to do it on a larger scale, maybe on a community level. Then you will be tested or asked to do the same on a level of, let's say, society, on a level of a religion or a culture, then on a level of a country, then on a level of a entire planet. That is how you graduate, right? The higher you go, the more responsibilities you have. So ये 5 principles को आपको इस पे meditate करना है. What does beauty mean to me? What does goodness mean to me? What does righteousness mean to me? What does joy mean to me? And what does freedom means to me? If you can master these 5 principles, you will become a co-creator with God, and whatever you will do will transform not just yourself, but the people around you and the world. And that is the 5 principles which great saints and avatars used. इसको हम आगे के लेसन्स में और डीपली एक्सपांड करेंगे, बट लेट्स गो टू द फर्दर पॉइंट्स. कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, सो जो सेंट्स एंड योगीज होते हैं, why you feel a certain kind of blissfulness around them and why they are able to bring so much transformation in this world is because they are able to live and tap that divine plan, and they can stay in that consciousness, state of consciousness 24/7. सोचिए कि through one meditation they experienced the plan for the next 1 year,
So for that next 1 year, they will take up that project using these 5 elements, which I just told you. They will try to create certain projects. Maybe they will heal hundreds of thousands of people. They will create certain ashrams, जहाँ से बहुत सारी divine energies लोगों को मिलेगी. They will create some projects जिससे कि humanitarian, projects जैसे charitable projects होते हैं, जिससे कि लोगों का life improve होगा. There will be less hunger in the world. There will be less disease in the world. So something like that they will start initiating. So just think, सोचिए कि इस सेशन में कितने लोग हैं. We are about 47 people. Let's say we are 47 saints here. And let's say we are given a charge to transform a few thousand people, or lives of few thousand, or let's say a lakh people. So then using these 5 principles, you have to take up projects and then you have to transform. That is the nature of training in this world. Once you go in the spiritual path, you have to take up certain projects and then you have to manifest. So this is the proof. This proves that you will be ready for greater responsibilities. So in the spiritual worlds, ये ट्रेनिंग से आप क्या कर रहे हैं? जो गॉड का बनाया हुआ प्लान है उसको टप्पे टप्पे में या EMI में आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. But it will take time. According to the teachings, when 1/3 of the humanity, is it 1/3 or yeah, something like that, 1/3 of the humanity ये प्लान को एक्सेस कर पाएगा और उसके हिसाब से अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, we will have heaven on earth. So it's a big duty, it's a big responsibility. We all need to participate. One person cannot do this. So it's like a spiritual schools is like, the teachers training program, जहाँ पे उन लोगों को भर्ती किया जाता है who can be teachers, future teachers of humanity, who can tell people that, see, this is the reality of life. That's what Lord Jesus do. He said, by using his principles, उन्होंने जो teaching Bible में दी है, he said, by utilizing these principles, you are creating your home in the heaven beside God, or maybe, in God's heaven, yeah, God's home. यहाँ पे जो आप deeds करेंगे, यहाँ पे जो आप acts करेंगे, you are creating a home in the inner world. So if you do misdeeds, you are creating a home or a place in hell. But when you do good deeds, good actions, based on the 5 principles I told you, you are creating a home there in heaven. It is already being created for you every single day by your actions. Okay, now let's go ahead. In the next point, I want to emphasize on something. Why the evolution is so slow? हमारा evolution इतना slow क्यों है? या इतनी suffering क्यों है? Why do people suffer in hell and heaven? यानी ये सब process से क्यों गुजरना पड़ता है? और God का प्लान अगर ईश्वर ने बनाया था तो वो manifest क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्यों इतना समय लग गया? Do you want to know? मतलब, see, all the reasons of why we are all suffering, there's a connection to some of the mistakes we are making every day, including some of the mistakes of the past. So there are 2 processes. इसको याद करने की कोशिश करिए. I want to keep it simple as possible. Put one finger like this, and you say involution. Bring your finger down. Involution. It's like, make like a ellipse. ऐसे बनाइए. Involution. And then bring your finger up. You say evolution. So involution, evolution. Now what is this? What does this mean? इसका मतलब ये है कि आज से कई लाखों साल पहले जब हम इस पृथ्वी पे भेजे गए थे ग्रो होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, या स्पिरिचुअली ट्रेन होने के लिए, तो शुरुआत में वी वर इनएक्सपीरियंस्ड, हमारे पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं था.
और उसके वजह से हमने कई सारी गलतियां की. We made many mistakes, and not just like, और उन सब में सबसे वर्स्ट मिस्टेक क्या थी हमारी, कि जब हमें पावर दी गई या अथॉरिटी दी गई, तो उस पावर और अथॉरिटी से हमने जो हमारे थॉट प्रोसेसेस थी उसको लोगों पे इम्पोज किया. अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ने, जिसके पास पावर दी गई, टेस्ट बिफोर जब आपको टेस्ट दिया जाता है तो पावर दी जाती है तो टेस्ट भी होता है आपका. सो लेट्स से एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल जो बाकियों से स्मार्ट थे, उनको टेस्ट किया गया कि चलो थोड़ा पावर देके देखते हैं. सो व्हाट दे डिड वाज, यूजिंग दैट पावर, दे imposed their own ideology, their own visions on the masses. उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, हमारा विचार ऐसा है, या हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी है, इसलिए ऐसा होना चाहिए. और ये चीज हर फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट होती चली गई. जैसे कि रिलीजन बोलिए, रिलीजन हो गया, व्हाट एल्स, सोशल लाइफ हो गया, हाँ, कैसा लोगों ने बिहेव करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए. एंड देन बिकॉज अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग जो पावर में आए, उन्होंने वर्ल्ड को डिवाइड किया. इट डिवाइडेड द वर्ल्ड, क्योंकि एक फिलॉसफी अलग थी, दूसरी फिलॉसफी अलग थी. ऐसे करते करते जो फॉलोअर्स थे, जिनके पास पावर नहीं थी, who were weak, they start to just go with a certain group of people. So the world was divided by people with power but the will to do bad. उनके अंदर में पावर था, विल था, बट दे डिड बैड. उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, और धीरे धीरे करके अपने फॉलोअर्स में भी वही विचार या वही थॉट प्रोसेस को ग्रो किया जो वो जो विजन वो देख रहे थे, एंड विच वाज अ विजन ऑफ सेपरेशन. सी, द गोल ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू यूनाइट. ईश्वर का बनाया हुआ जो हेवन है, उसमें सब एक समान है. सब, जैसे आप में से कुछ लोगों ने अभी बोला, जब मैंने पूछा कि कैसा वर्ल्ड आप देखना चाहते हैं, आपने बोला देयर शुड बी नो क्राइम, देयर शुड बी वन वर्ल्ड, कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, सब एक जैसे होना चाहिए. यस और नो? बट दिस पीपल व्हाट दे डिड वाज दे सेपरेटेड द मैनकाइंड सो दैट दे कैन रूल ओवर देम, उनके ऊपर रूल कर सके. सो जिसने उनकी बात मानी, दे बिकेम द विक्टिम्स. एंड ऐसा कई सदियों तक, कई हजारों सालों तक चला, जब people with this power they separated people in groups, various group जो आज भी है. That is why we have so many countries. और हर कंट्री में आप देखेंगे रूल्स अलग है, रेगुलेशंस अलग है, रिलीजन अलग है, सोच अलग है. सो हर लेवल पे इंसान को डिवाइड किया गया, ब्रेक किया गया, और एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को इम्पोज किया गया. जिस इंसान के पास में ज्यादा दिमाग, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, उसके पास कोई पर्याय नहीं था या ऑप्शन नहीं था जस्ट टू एक्सेप्ट दैट फिलॉसफी. बट एक समय आया जब गॉड ने देखा कि ये चीजें जो है, दिस इज स्लोइंग डाउन द इवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड. देन दे सेंट द स्पिरिचुअल हायरार्की. उन्होंने एक स्पिरिचुअल हायरार्की को भेजा, जिनका काम था समय समय पर अवतार्स को इनकारनेट करना, या अवतार्स को धरती पे भेजना, who would correct the mindset of people जो डिवाइड हो चुके थे. So this divided crowd was educated by time to time. It was a tough job, क्योंकि जो चीजें, जो डिविजन ऑलरेडी ये people with wrong intention and power जो उन्होंने काम किए हुए थे, उसको बदल पाने में समय लगा, और अभी भी लग रहा है. बिकॉज इट्स लाइक कई लाखों सालों में भी अभी भी लोगों में रिजिडिटी है. आप देखिए, रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके, पहनावे को लेके, हर चीज को कई लोग हैं जो बदलना ही नहीं चाहते. दे हैव बिकम लाइक क्रिस्टलाइज्ड, लाइक अ डायमंड जो टूट नहीं सकता. तो कई लोगों की जो विचारधारा है, व्हेन इट बिकम्स लाइक अ क्रिस्टल या कॉन्क्रीट हो जाती है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग.
So the most dangerous people on the world are not the ones जिनके पास में गन है. The most dangerous people are the ones जिनके पास mental power है and they have rigidity. वैसे लोग they rule the world. अब ये लोग आपको religion में भी मिलेंगे. They are at top positions in they are top, you can say, priests or priestesses. Don't think कि corruption of the mind is just on the lower level. They are very, very powerful, very, very influential people in the world who are ruling the world, who are guiding the religions, but they are not spiritual. They just want to keep the power to themselves so that, you know, the world remain according to their plan, not according to God's plan. इसलिए जब great spiritual teachers आते हैं, they experience a lot of obstacles and challenges. Are we communicating? So when Lord Jesus came, you see, he was crucified. When Lord Krishna came, he experienced a lot of chaos and war. उनके सामने रहते लोगों की मृत्यु उन्होंने देखी because of this power play. But what he could do, his job was not to interfere in the fight. उनका काम था लोगों को अवेकन करना, जैसे कि हम इस सेशन में कर रहे हैं. इसके बाद आप क्या करते हैं, उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं था. But he tried telling people that love each other. We are all one. हम एक ही ईश्वर की संतान हैं. आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है. The same spiritual essence of God is inside us. Are we communicating? So it's a tough job, but they did it. So धीरे धीरे करके ही सही लोगों में spirituality के प्रति या ईश्वर के प्रति faith और इंटरेस्ट पैदा हुआ. बट फिर भी आज भी हमारे अंदर में इतने सारे कैल्सिफाइड आइडियाज है. जैसे कि जब मैं अगर आपको कुछ चीजें बताऊंगा हेवन वर्ल्ड के बारे में या लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा पहली बार में. आप बोलेंगे नहीं, रिलीजन में तो ये लिखा है. माय पॉइंट इज, हु मेड द रिलीजन? डिड लॉर्ड कृष्णा मेड द रिलीजन? डिड बुद्धा मेड एनी रिलीजन? Did Lord Jesus made any religion? They did not make any religion. They just came and talked about the laws जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. लोगों ने उसके आसपास एक रिलीजन क्रिएट किया जिससे सेपरेशन हुआ, एक कल्ट बना, एक ग्रुप बना, जिससे लोग और डिवाइड हुए. उनका काम जब तक वो थे, अगर आप ध्यान से हिस्ट्री चेक करेंगे, स्टडी करेंगे, जब तक अवतार थे तो कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, कौन, तब तक तो उस रिलीजन का कोई नाम ही नहीं था. ट्रू और नॉट ट्रू? So whether you're a Muslim, you're a Hindu or a Christian, does not matter. Avatar accepts everyone. लेकिन जैसे वो गए, आपने लोगों ने उनके आगे इज्म लगा दिया, उनको हिंदुइज्म बना दिया, क्रिश्चियनिटी बना दिया या बुद्धिज्म बना दिया, and people started to follow that ism instead of following the actual teachings. And again, there was a division. So God का जो divine plan है, it is connected to becoming one. Is connected to unity consciousness. It is connected to bringing people together from all religions towards one truth, one realization about the universal laws or universal principles. Are we communicating? Why are we talking about this? क्योंकि spiritual laws के बारे में या inner world के बारे में जानने से पहले ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है. Without that, वो चीजें आपको बहुत hypothetical और superficial लगेगी. So there is a divine plan which needs to be manifested, and the time is very less. Time is very short. We need to move fast. When we say time is less, doesn't mean कि your one lifetime is a very small time, but at least in the next 5 to 10 lifetimes, you should at least plan to do your part. क्योंकि जब ये सेशन खत्म होगा, I am sure, I guarantee you,
your mind will be trained to see beyond one lifetime. You will see at least through 5-10 lifetimes, and you will plan accordingly. Because life is a continuous journey. Yes. And remember, the main learning आज के सेशन का अगर आप बोलेंगे कि क्या है, वो ये है कि ईश्वर का बनाया हुआ जो डिवाइन प्लान है उसमें और हमारे अभी के एग्जिस्टेंस में जो सफरिंग है उसके बीच में एक ही चीज है, हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज जो हमने अलग अलग जगहों से जमा किए हैं. सो इफ यू वांट टू चेंज सम वन थिंग इन योरसेल्फ आज के सेशन के बाद, वो ये है, इज टू बिकम ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये नहीं है कि सॉलो एवरीथिंग, सब जो आया सब चीज को मान लेना है. ओपन माइंडेडनेस मीन्स कि कोई भी टीचिंग को ना एक्सेप्ट करे ना रिजेक्ट करे, बट उसको स्टडी करे. इफ इट केम इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसको स्टडी करें, एनालाइज करें, एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचे. डू नॉट ब्लाइंडली और आउटराइटली रिजेक्ट सम टीचिंग्स जस्ट बिकॉज यू थिंक कि आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज उसके अगेंस्ट है. क्योंकि हमने जो बहुत सारी चीजें जानी है लाइफ में, जरूरी नहीं है कि वो सारी सच है. आई टोल्ड यू कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, ये समय के साथ आपको पता चलेगा, जो बहुत पावरफुल पोजीशन में है. दे आर रिलीजियस लीडर्स, दे आर पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर वर्ल्ड लीडर्स, एंड दे चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एवरी फ्यू ईयर्स. जितना उनको अपना इंटरेस्ट दिखता है उसके हिसाब से रिलीजियस टीचिंग को भी चेंज करते हैं. रिलीजन में क्या लिखा जाना चाहिए वो भी चेंज करते हैं ताकि उनका पावर बना रहे. सो हाउ विल यू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? सो कई बार रिटर्न वर्ड से भी ज्यादा इनर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का एक हिस्सा जो है वो है टू मेडिटेट ऑन द हायर रियलिटी, हायर प्रिंसिपल्स. And what are the 5 higher principles I want you to remember from today's session? Beauty, goodness, righteousness, joy and freedom. इन पे सोचिए, just meditate. अगर आपको एक वर्ल्ड, अपनी एक रियलिटी तैयार करनी है, एक फ्यूचर तैयार करना है, सो ये उसके 5 प्रिंसिपल्स है. What is beauty for you? What is goodness for you? What is righteousness? What is joy? What is freedom? Okay, so here we take a pause today and we will continue tomorrow. If you have any questions, we can take 1 or 2 questions and then